Inano samane sateya. Maneniana niana no salabaso yaya. Eyayana niana no sade kasabadosa. Inano samano saye. Kingdom come, kingdom come, kingdom come, thy will be done. He's the light that flows from the throne of grace. True nobility in life is knowing the Lord and walking in His way. The most glorious pursuit of mankind is walking in God's image and likeness. It is our utmost desire that you will be richly blessed as you listen to this message from Living Scroll Ministry, aka If the Bible Network. For more life-transforming messages, please visit www.livingscrollministry.org. He's the light that flows from the throne of grace. प्राइम मिनिस्टर जो सेवका है उसको देखकर मैं बहुत ज्यादा मैं आनंदित हूँ. This prayer ministry, they do a 10 days, 24 hours prayer every month. 10 days, 24 hours prayer through. There means people from all over the world join in to pray. और ये लोग जो है हर महीने में 10 दिन जो है 24 घंटे का प्रार्थना रखते हैं और इस 10 दिन की प्रार्थना में दुनिया के अलग अलग जगहों से लोग जो है यहाँ आकर प्रार्थना. I know we have a small prayer ministry in one of our churches, but I want to encourage those who are there from the prayer ministry to receive something from the Lord today, that we can also be challenged to pray like this. मैं जानता हूँ हमारे बीच में भी एक छोटा सा प्रार्थना का एक मिनिस्ट्री चल रहा है और मैं आप सभी से भी चाहता हूँ जो उस प्रार्थना में जुड़े हैं कि आप सभी भी ये लोगों के प्रार्थना सभा को देखकर कुछ सीखें और कुछ. This man of God is married and with 4 children and he serves the Lord together with them. और परमेश्वर के दास जो है शादीशुदा है और 4 बच्चे भी हैं उनका और सभी लोग साथ में परमेश्वर की सेवकाई करते हैं. I'm not going to go into all the ministries he does, but I want to tell you, this man of God has been working in the industry, and he left his job in 2022 to focus upon the ministry, and has been leading various ministries, mentoring people, teaching the word of God, and being a blessing to God's kingdom. और वो एक अच्छा नौकरी करते थे लेकिन उन्होंने अपना नौकरी को छोड़कर परमेश्वर की सेवकाई के लिए समर्पण किया है और वो सेवकाई करते हैं, लोगों को मार्गदर्शन देते हैं और वचन को सिखाते हैं. ऐसे बहुत सारे सेवकाई वो करते हैं. And so with great gratitude and with great rejoicings, I want to welcome Pastor David Abubakar. If you can all just clap your hands and just welcome him, praise God, as he comes to serve the word of God to us. May Jesus be glorified in our midst. Praise God. और मैं पूरे दिल से और आनंद के साथ मैं परमेश्वर के दास पास्टर अबू बकर को डेविड अबू बकर को हमारे बीच में स्वागत करना चाहता हूँ और हम सभी जो है तालियों के साथ उनको स्वागत करेंगे कि परमेश्वर हम सभी से. Over to you, Pastor David. May the Lord richly bless you. Thank you. Amen. Amen. Thank you so much for calling me to this fellowship. और आप सभी के बीच में मुझे स्वागत करने के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ. I'm glad. मैं बहुत आनंदित हूँ to see my brothers and sisters. और मेरे भाइयों और बहनों को देखने के लिए देखकर मैं बहुत ज्यादा आनंदित हूँ. Even though we don't know in person. और हम जो एक दूसरे को जानते नहीं हैं. We are one in our Father. लेकिन हमारे पिता परमेश्वर में हम सभी एक हैं. We share the same blood, the blood of Jesus. और हम जो है वो ही प्रेम को और यीशु मसीह के उस लहू के द्वारा हमको लिया गया है. We share the same calling. और हमको एक ही बुलावट है. We share the same hope. और हम एक ही आशा के लोग हैं. We share the same fears. और हमारे जो विश्वास है या फिर हमारा जो भी बात है हम एक ही तरीके का है. We share the same persecution and affliction. और सतावट जो हम महसूस करते हैं, जो हम अनुभव करते हैं, वो भी एक ही है. We share the same God and Father. और हम एक ही पिता और परमेश्वर की सेवकाई करते हैं. All of us together. और हम साथ में करते हैं. The Bible calls us a companion. और वचन में लिखा गया है कि हम सभी जो है एक दोस्त के समान है. In tribulation. That's Revelation chapter 1 verse 9.
और प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय उसके 9वें आयत में लिखा गया है that we are all companion कि हम सभी लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं in tribulation, that's in troubles, और हम संकट में और या फिर सतावट में भी हम एक दूसरे के साथ है, एक साथी है in the patience and kingdom of Jesus Christ. और एफिसियों में हम देख सकते हैं कि हम साथ में परमेश्वर के राज्य के भागी है। Once again, thank you, brethren. एक और बार मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ I want to start by appreciating the leaders of this platform और इस सभा के जो भी लीडर्स है, अगुवे हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ for the enormous labors that you are doing. और उनको प्रशंसा भी करना चाहता हूँ कि वो इतने बड़े कार्य करते हैं। We in Nigeria here, some of us, और यहाँ नाइजीरिया में भी हम सब सेवकाई करते हैं we read about what is going on in India, और हम देखते हैं कि भारत में क्या होता है and it's a source of encouragement and support to our own faith. और हमारे लिए भी आप लोगों की बातों को पढ़कर हम जो है प्रोत्साहन को और उत्साह को प्राप्त करते हैं। I want to start by thanking our father and my own father too. और हमारे पिता को और मेरे पिता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। Pastor, I would like to say Papa P.A. Thomas. पास्टर P.A. थॉमस को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। Papa is our daddy. और मैं उनको पापा या फिर पिताजी कहकर पुकारता हूँ। And it's my own daddy too, और वो मेरे भी पिताजी है because of my relationship with his son, Pastor Reggie Thomas. और पास्टर रेजी थॉमस के साथ जो मेरा संगति है उसके कारण मैं भी उनके पिता मेरे लिए भी एक पिता समान है। I thank you so much for the labor over the years, over 40 years. और जो रिश्ता है हमारे बीच में उसके लिए भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। Papa, thank you. मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पिताजी को। I want you to know you have a son in Nigeria. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको नाइजीरिया में भी एक बेटा है। Because I told your son, Pastor Reggie, that you are my father too. क्योंकि मैंने आपके बेटे को पास्टर रेजी थॉमस को बताया कि मैं आपके पिताजी जो है वो मेरे पिताजी भी है। I also want to thank our pastor Terence Brown. और पास्टर which pastor can you repeat? Terence Brown, president of Milan Deepak. Foundation. ओके पास्टर टेरेंस जो जुड़े हुए हैं, जो एक संस्था के प्रेसिडेंट है, उनको भी मैं स्वागत करता हूँ। You are in India, but your labor is going all over the world. और इंडिया की जो बातें हैं पूरे दुनिया में हम सुन पाते हैं। I learned of your labor to translate the Bible. और बाइबल की ट्रांसलेशन के बारे में भी हम जान पा रहे हैं। For 7 years. और कई सालों से Yourself and your wife. और वे और उनके पत्नी जो है। And I share the testimony with my people here. और मैं मेरे गवाही जो है मेरे यहाँ के लोगों के साथ बांटता हूँ। Such labor, such work. सोशल जो समाज सेवा करते हैं। Encourage believers all over the world. Thank you. और जो समाज सेवकाएं जो आप करते हैं वो संसार के हर एक विश्वासी को है जो है प्रोत्साहन देता है। All other pastors and area leaders, I want to appreciate you. Thank you. और सारे पास्टर और एरिया लीडर्स को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनको प्रशंसा भी करना चाहता हूँ। So I would like to speak on our faith and our hope. और हमारे विश्वास और हमारे आशा के बारे में बातें करना चाहता हूँ। But before I go on, यदि मैं आगे जाऊँ, some of your brethren in Nigeria send their greeting. और आपके जो भाई बहन जो नाइजीरिया में उनका भी जो सलाम जो है वो आप सभी को देना चाहते हैं। They are here. While you were praying, while you were worshiping, we were worshiping here too. और वे सभी लोग भी यहाँ हमारे साथ हैं और जब भी आप लोग आराधना कर रहे थे So हम भी यहाँ बैठकर आराधना some कर of them are रहे here. थे। They send their love and greeting. और वो लोग हमारे यहाँ है, वो लोग भी अपना प्रेम और उनका जो प्रेमी सलाम जो है वो आप सभी को They देते send their हैं। love and greeting. और हमारा प्रेम और हमारा जो सलाम हम सभी को देना चाहते हैं। Praise the Lord. परमेश्वर का स्तुति हो। So I'll be speaking on our faith and our hope. और हमारे विश्वास और हमारे आशा के बारे में बताना चाहता हूँ। But I would like to start by telling us something about the womb. The womb.
और मैं जो है कोक या फिर गर्भ के बारे में बताना चाहता हूँ। We are still in the womb of life. और हम जीवन के उस कोक में या फिर उस गर्भ में है, We are born after we die. और हम मरने के बाद हम जन्म लेते हैं। Colossians chapter 3 from verse 1 to 4. कुलुस्सी उसका 3रा अध्याय उसका 1 से 4 आयत में हम देखते हैं। From verse 3 to 4 say you are dead and your life is hidden in Christ in God. उसका 3रे आयत में हम देखते हैं कि क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। The life we have today जो जीवन आज हमारे अंदर is है not our real life. वो हमारा खुद का नहीं है। Verse 4 say when Christ who is our life shall appear. और 4 आयत में लिखा गया है जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, Then shall we also appear with him in glory. तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। Now why am I saying this? और मैं इन बातों को क्यों कहता हूँ? So that we can understand our life ताकि हम हमारे जीवन को समझ सके and then know what we labor for and how we labor. और ताकि हम जान सके कि हम किसके लिए सेवकाई करते हैं और हम कैसे सेवकाई करते हैं। So let me compare the womb and our present life. तो जो कोख है जो या फिर गर्भ है और हमारे वर्तमान जीवन को मैं तुलना करना चाहता हूँ। In the womb, your physical state and future is fixed and cannot be added upon once you leave the womb. और जब हम किस गर्भ में होते हैं तो हमारा जो शारीरिक जो बातें हैं वो सीमित होता है और वो बड़ा नहीं हो सकता, वो सीमित रहता है। और जब तक हम कोख से बाहर नहीं निकलते हैं तब तक वो बढ़ नहीं सकता है। Here on earth, यहाँ से here on earth in this world, और यहाँ हम इस धरती पर our eternal future will be fixed and cannot be added upon after we die and live here. और यहाँ इस धरती पर हमारा जो जीवन है वो एक सीमित है और जब तक हम मरेंगे नहीं तब तक वो सीमित ही रहता है। We are still in the womb of life. We will be born after we die. और हम अभी भी जो है जीवन के उस गर्भ में उस कोख में है और जब हम मरेंगे तभी हमारा जन्म होता है। The height of the child and the color of the child is fixed from the womb. और जो हमारा जो लंबाई है या फिर हमारा जो शरीर की गठना है वो जो है और जो भी बातें हमारे जीवन में होता है वो सब जो है कोख के अनुसार ही सीमित रहता है। When the baby come out of the womb, the baby will grow into what the baby brought from inside the womb. और जब ये बच्चा पैदा होता है तो तभी बच्चे का जन्म हो जो उसका बढ़ोतरी होता है या फिर वो बड़ा होने लगता है। So there is eternity that is coming. और हम जानते हैं कि अनंत काल आने वाला है। And we are here, we will labor every day so that we can form well and prepare for eternity. और हम यहाँ इस धरती पर सेवकाई करते हैं और हम श्रम करते हैं ताकि हम जो है उस अनंत काल की तैयारी कर सके। Number 2. और दूसरा बिंदु, The womb is not the main place for human life to live. और ये जो कोख है वो एक मनुष्य को या फिर एक इंसान को रहने के लिए हमेशा के लिए रहने वाला एक स्थान नहीं है। The world itself, after the baby is born, the world itself is the main place for human life. और बच्चा जन्म होने के बाद ये धरती जो है उस बच्चे की बढ़ोतरी के लिए अच्छा स्थान है। So life on earth is not our main life. और जो संसार का जो जीवन है एक बहुत बड़ा जीवन नहीं है। Our main life is the future that is coming in God, eternity. और हमारा मुख्य जो जीवन है वो हमारा भविष्य काल में अनंत काल में जो परमेश्वर के साथ है वो है। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। So the baby prepares in the womb for the life in the world. तो बच्चा जो है कोख में गर्भ में वो तैयारी करता है ताकि वो उस धरती पर जी सके। So we are preparing on earth for our life in the eternal future. धरती पर तैयारी करते हैं ताकि हमारा अनंत काल के जीवन के लिए हम prepare तैयार well. हो जाए। तो हमको अच्छे से तैयारी करना है By serving the Lord well. और हमको परमेश्वर की सेवकाई भी अच्छे से करना है। In the new heaven and the new earth that is coming.
और नया स्वर्ग और जो नया धरती आने वाला है। We have it in Revelation chapter 21 verse 1. और प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय उसका पहले आयत में हम इसके बारे में देखते हैं। John said, I saw a new heaven and a new earth. और यूहन्ना कहता है फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा। So this earth is like being in the womb. और ये जो धरती है वो हम इस कोख के समान हम देखते हैं। And the new earth coming will be like our main life. और जो नया आकाश या फिर नई पृथ्वी जो आ रही है वहां ही हमारा मुख्य जीवन होगा। That's why Jesus said, इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं, what can a man give in exchange for his life? यीशु मसीह कहते हैं कि एक मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या दे सकता है। That a man's life is more valuable than the whole world. और एक मनुष्य का जीवन जो है पूरे संसार से भी बहुत ही ज्यादा बहुमूल्य है। Number 3, और तीसरा बिंदु, the powers of the human life cannot be seen in the womb. और मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है वो कोख में वो हम पूरे रीति से देख नहीं पाते हैं। Even though there is a measure of activity by the baby in the womb. और बच्चे का जो चलन जो है चाल चलन थोड़ा सा कोख में होता है, The same way, फिर भी हम उसको पूरी रीति से समझ नहीं our life on earth, our earthly life, our life in this world cannot reveal the true purpose, pleasure, and powers of the human life. Pastor, can you repeat? We lost you in between. Okay, can I take it again? I say, the same way our earthly life, our life in this world cannot reveal the true purpose and power of the human life. तो उसी प्रकार से जैसे बच्चे का पूरे जीवन का जो उद्देश्य हम उसके कोख में समझ नहीं पाते हैं, उसी प्रकार इस धरती में जो हमारा जीवन है तो उस जीवन का पूरा उद्देश्य या फिर उसका जो मकसद है वो हम इस धरती पर पूरी रीति से समझ नहीं पाते हैं। So brethren, we have all not seen the human life yet. तो मेरे भाइयों, हमने We are still in the womb of life. We are still in the womb, like living in the womb of life. Pastor, can you repeat? We are still in the womb of life, like a woman's womb, baby. We are still in the womb of life. We will be born after we die. और हम जो अभी भी एक माँ के कोख में जैसे एक बच्चा होता है, तो उसी प्रकार हम इस धरती में एक कोख में एक हम वास कर रहे हैं। Why did I say all of this analogy, all of these things? और मैं इन सारे बातों को मैं क्यों बता रहा हूँ? We are in this world to prepare for the world that is coming. Simple. तो उसका सरल अर्थ ये है कि हम इस धरती पे इसीलिए है ताकि हम आने वाले अनंत काल के लिए तैयारी कर सके। The summary of the human life is to prepare for eternity. और इंसानी जीवन का जो मुख्य उद्देश्य ये ही है कि हम अनंत जीवन के लिए तैयारी करें। The whole world is an empty shell. The world is empty. और पूरा संसार जो है एक शून्य है। The world has nothing to give that can quench our hunger and our thirst. और इस संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो हमारे प्यास को या फिर भूख को बुझा सके। The world cannot satisfy our desires. और हमारे अभिलाषाओं को इस संसार पूरा नहीं कर सकता है। Because they are so deep, so high, so wide, and so long. क्योंकि वो बातें जो है बहुत ही बड़ा, बहुत ही चौड़ा और बहुत ही बड़ा रीति में होता है। Only the Creator, the God of heaven, can meet our hunger, thirst, and desire. केवल हमारा परमेश्वर जो सारे सृष्टि के दाता है, वो ही हमारे प्यास को, हमारे भूख को बुझा सकते हैं। Because our life is bigger than this world. क्योंकि हमारा जीवन जो है संसार से भी बढ़कर है। So true honor is to use our human life to serve God and prepare for eternity. तो हमारा यही मकसद है कि हम इस संसार में जो है परमेश्वर की सेवकाई करें और अनंत काल की तैयारी करें। The world has vegetables for food. और संसार में जो है हम सब्जी को देखते हैं तो वो हमारे खाने के लिए होते हैं। Cotton for clothing. और वस्त्र भी है हमको कपड़े के लिए। But our human bodies need more than these dead things. लेकिन हमारे शरीर को, इंसान को इससे भी बढ़कर चीजों की जरूरत है। That ends up in the toilet and in the waste bin, the dustbin.
और कई बार ये सारे वस्तुएं जो मैंने बताया वो जो है डस्टबिन में या फिर हम उसको फेंक देते हैं कई बार। Our bodies are alive and able to give birth to another life. और हमारा जो जीवन है उसमें एक जान है और हम जो है दूसरे एक जान को जन्म दे सकते हैं। Our bodies need something higher than food and clothing. और हमारे जीवन में हमको खाना और कपड़े से भी बढ़कर कुछ चीजों की जरूरत है। It needs a touch of life from God. और हमको परमेश्वर की उस ज्योति का जरूरत है। The world has more wooden houses, brick houses. और संसार में हम बहुत सारे बड़े बड़े मकानों को देखते हैं, But our human spirits लेकिन हमारा आत्मा, मनुष्य की जो आत्मा है, does not and cannot live in all those houses. हमारे आत्मा जो है ऐसे बड़े बड़े मकानों में रह नहीं सकती है। A human spirit live in another spirit. और मनुष्य की आत्मा जो है दूसरे आत्मा में वास करता है। You see why demon spirit live inside people. इसके लिए हम देखते हैं कि दुष्ट आत्मा जो है मनुष्य के अंदर रहता है, Because spirit live in themselves. क्योंकि दुष्ट आत्मा जो है उनके आत्मा में वास करता है। A spirit will live inside another spirit. हम आत्मा में जो है दूसरे आत्मा में वास करते हैं। You see why we have the Holy Spirit as our house on earth. इसलिए हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम पवित्र आत्मा हमारे साथ होता है और हम पवित्र आत्मा में एक वास करते, जैसे हम एक घर में वास करते हैं। Our new human spirit in Christ Jesus lives in the Holy Spirit. और हमारा जो नई आत्मा है जो यीशु मसीह में है, वो आत्मा पवित्र आत्मा में वास करता है। And on earth, the Holy Spirit lives inside the spirit of believing Christians. और इस संसार में पवित्र आत्मा जो है परमेश्वर के लोग जो विश्वास करते हैं, जो विश्वासी है, उनके भीतर वास करते हैं, Who are in Christ Jesus. जो मसीह यीशु में है। So you see that the world cannot accommodate our spirit. इसीलिए हम देख सकते हैं कि संसार जो है हमारे आत्मा को कायम नहीं, इसको पकड़े रह नहीं सकता है। Only God in heaven can accommodate our spirit. केवल परमेश्वर जो स्वर्ग में वास करते हैं वो ही हमारे आत्मा को संभाल सकते हैं। This is who we are. और यही हम हैं। And this is why all our life we want to serve God. और इसीलिए हम जो है पूरे हमारे जीवन में हम इस प्यास के साथ रहते हैं। Because our lives are bigger than the blessing and suffering in this world. क्योंकि हमारा जीवन जो है इस संसार के आशीष और इन संसार की बातों से भी बढ़कर है। Also, और एक और बिंदु बताना चाहता हूँ, in this world you cannot have too much of anything. और इस संसार में हम किसी भी वस्तु की अधिकताई को हम अनुभव नहीं कर सकते हैं। The more of anything you have, the more trouble you will have. और यदि हमको कोई वस्तु हमारे अंदर एक सीमा से बढ़कर है तो उतना ही ज्यादा परेशानी को भी हम सामना करना पड़ता है। Number one, good food. पहला उदाहरण में देता हूँ, अच्छा खाना। When you eat good food too much, your stomach will start paining you. और यदि हम अच्छे खाने को कुछ ज्यादा ही खाते हैं तो हमारा पेट में दर्द होता है। And you will have constipation. फिर आपके पेट में गड़बड़ शुरू हो जाता है। Number two, sex. और दूसरा है जो सेक्स है। If you have it too much, तो यदि हम उसको वो भी कुछ ज्यादा होता है, your heart may fail and you die. तो आपका हृदय में परेशानी हो जाता है और आप मर सकते हो। If you run too much, you will get tired. और यदि हम कुछ ज्यादा करेंगे तो हम ज्यादा भागेंगे तो हम थक जाते हैं। If you walk too slow, you will not get anywhere. यदि आप बहुत धीमे चलेंगे तो आप किधर भी पहुंच नहीं पाएंगे। If you talk too much, you will be exhausted and become noisy. और यदि हम ज्यादा बातें करेंगे तो हमारा आवाज भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो जाएगा और हम थक जाएंगे। If you do not talk, nobody will hear you. You will be forgotten. यदि आप बात नहीं करेंगे तो कोई भी आपको नहीं सुनेंगे और आपको सब लोग भूल जाएंगे। If you labor or work too much, you will break down. यदि आप कुछ ज्यादा परिश्रम करते हो या फिर ज्यादा चलते हैं तो आप जो थक जाएंगे। If you have too much money, you will be restless. You can't keep your heart in one place.
यदि आपके पास बहुत ही ज्यादा धन है तो आप जो है अशांत रहेंगे और आपके हृदय को आप एक स्थान में नहीं रख पाएंगे। If you spend too much money, you will start suffering from lack. और यदि आप बहुत ज्यादा धन को इस्तेमाल करते हैं तो आप भी परेशान हो जाएंगे और आप में बहुत सारे परेशानी को आपको सामना करना होता है। If you live too long, you start dying while you are still alive because your body system start failing. यदि आप बहुत लंबी उम्र तक जीते हैं तो आप जीते जी ही मर जाते हैं, क्योंकि मनुष्य का जो शरीर जो है एक उम्र के बाद वो जो है सड़ने या फिर वो बलहीन होने लगता है। If you live too short, you cause too much pain for your loved ones you leave behind while you die young. और यदि आप बहुत ही कम उम्र में मर जाते हैं तो आपसे जो प्रेम करते हैं या फिर आपके परिवार लोगों के हृदय में आप जो एक बहुत बड़ा घाव या फिर दुख देते हैं। But here is the good news. लेकिन सुसमाचार या फिर एक अच्छा समाचार यही है, you cannot have too much of anything in our God. और इस जगह पर हम जो है कुछ भी चीजों को अधिक या फिर असीमित रीति से अनुभव नहीं कर सकते हैं। Your peace cannot be too much. और आपका शांति भी कुछ ज्यादा नहीं हो सकते हैं। The more the peace, the more the rest in your soul. और कितना ज्यादा शांति आपके अंदर है उतना ही ज्यादा आराम भी आपके अंदर होगा। Your joy cannot be too much. और आपका आनंद भी कुछ ज्यादा नहीं हो सकता है। More joy, more good health. और ज्यादा आनंद तो ज्यादा अच्छा स्वास्थ्य। In Proverbs chapter 17 verse 22. नीति वचन उसका 17 अध्याय उसके 22वें आयत में हम देखते हैं, A joyful heart is like medicine. और एक उत्तम हृदय जो है, एक आनंदित हृदय जो है एक दवा के समान है। In our God, हम जो मसीह में है, you cannot love too much. हम जो ज्यादा प्रेम नहीं कर पाते हैं। The more they love, the more others are blessed in your life. और जितना ज्यादा आप प्रेम करते हैं तो उतना ही ज्यादा आशीष भी आपके द्वारा और आपके जीवन में होता है। And the more God will rejoice over you. और उतना ही ज्यादा परमेश्वर आपसे आनंदित होते हैं। You cannot have too much righteousness and holiness. और आप जो है बहुत ही ज्यादा धर्मी या फिर बहुत ज्यादा पवित्र नहीं हो सकते हैं। The more righteous you are in your duties on earth, the more power you will have with God. और जितना ज्यादा धार्मिक रीति से आप कार्य करेंगे उतना ही ज्यादा सामर्थ्य को आप परमेश्वर से प्राप्त करेंगे। Holiness equal to power in God. और पवित्रता जो है एक शक्ति के साथ तुलना कर सकते हैं हम परमेश्वर की उपस्थिति में। Only in God we can have much and yet have not started to have anything. और हम परमेश्वर में ही हम जी सकते हैं और लेकिन फिर भी हम बहुत सारी चीजों की कमी को हमारे जीवन में देखते हैं। Our God is everlasting. और हमारा परमेश्वर जो अनंत काल का परमेश्वर है। God calls us to have everlasting in all things. और परमेश्वर भी हमको असीमित उस जीवन में बुलाना चाहते हैं। Everlasting life. अनंत काल का जीवन चाहते हैं। Everlasting joy. और अनंत काल का आनंद को देना चाहते हैं। Everlasting peace. और अनंत काल का शांति भी देना चाहते हैं। Everlasting rest. और अनंत काल का आराम भी देना चाहते हैं। Everlasting glory. और अनंत काल का उस महिमा भी देना चाहते हैं। Hallelujah. आमेन, हालेलुया। Our faith is Jesus Christ. हमारा विश्वास जो प्रभु यीशु मसीह में है। Our hope is Jesus Christ. हमारा आशा जो प्रभु यीशु मसीह में है, the Son of the living God. और जो परमेश्वर जीवित परमेश्वर का पुत्र है। Christianity और मसीहत जो है is a call to Jesus Christ. और उसमें हम जानते हैं कि हम यीशु मसीह के पास जाने के लिए बुलाते हैं। That we become like Jesus Christ. ताकि हम यीशु मसीह के समान बन सके। And then serve him. और हम उनकी सेवा कर सके। Jesus gave us the Holy Spirit. यीशु मसीह ने हमको पवित्र आत्मा दिया है। For one thing among so many reasons. और बहुत सारा कारण है उसके लिए, लेकिन उसमें से एक कारण बताना चाहता हूँ। I want to talk about one of the reasons quickly. और उसमें से एक कारण मैं जल्दी से बताना चाहता हूँ। Devotion to God at any cost.
कि हम हर एक क्षण जो है, कोई भी कठिनाइयों के बीच में जो भी है, हम and जो at परमेश्वर all price. की भक्ति करें, और कुछ भी दाम देना पड़े फिर भी हम भक्ति करते रहे, Any cost कुछ भी दाम देना पड़े फिर भी, and at all price. और हम जो है हर एक कीमत में जो है हम परमेश्वर की ही भक्ति करें। What we are willing to give to follow God is our life. और हम जो देना चाहते जो परमेश्वर के लिए है, वो हमारा जीवन है। Like many of you listening, हम बहुत सारे लोग यहाँ सुन रहे हैं। I did not come from a Christian home. मैं एक मसीह जीवन से घर से नहीं आया हूँ। I was a Muslim. मैं एक मुसलमान था। I grew up in the mosque, मैं मस्जिद में मैं जो बड़ा हुआ, but I found Jesus. लेकिन मैंने यीशु मसीह को जाना, My life changed. और मेरा जीवन बदल गया, I have hope, और आज मेरे अंदर आशा है, the hope of everlasting life. अनंत काल की आशा है। This alone drives my labor. और ये जो बातें हैं मेरी जो श्रम को आगे बढ़ाता है। Jesus told me and you, और यीशु मसीह ने हमको ये सिखाया और आपको भी सिखाया है। I go to prepare a place for you. John chapter 14 verse 1 and 2. और यीशु मसीह कहते हैं कि मैं एक जगह पर जाता हूँ जिधर मैं आपके लिए घर बनाऊं, When I prepare it, I will come back and take you. और जब भी मैं घर बना चुका हूँ, बन के हो जाता है, तभी यीशु मसीह वापस आकर हमको लेके जाएंगे। And this is enough for me. और ये बातें मेरे लिए काफी है To labor, कि मैं परिश्रम करूं, knowing that the reward is coming. कि प्रतिफल आने वाला है, And then my true life will start. और फिर मेरा असली जीवन शुरू होगा। Now, what is the price we pay to follow Jesus? और यीशु मसीह का पीछा करने के लिए क्या दाम चुकाना है? It is our life. और वो दाम है हमारा जीवन। And the price go higher and higher and higher. और उसका दाम जो है वो बढ़ते जाता है, बढ़ते ही जाता है। When I gave my life to Jesus Christ, जब भी मैंने मेरा जीवन यीशु मसीह को दिया, somebody said they should kill me और किसी ने कहा कि मुझे मार डालना है, because my parents were people that went to Mecca. क्योंकि मेरे माता पिता जो है वो मक्का में गए थे। Both my father and my mother. मेरे माता और पिता दोनों गए थे। And my brothers and sisters were Muslim. और मेरे भाई और बहन वो भी मुसलमान हैं। But I remember the price I paid. लेकिन मैं जानता हूँ कि क्या दाम मैंने चुकाया है। From the price that Jesus himself paid. Can you repeat, Pastor? From the price that Jesus himself paid. और यीशु मसीह ने जो दाम दिया है, उसी दाम को मैंने भी यीशु मसीह के लिए दिया है। Jesus paid the price of his own life. यीशु मसीह ने अपना जीवन दिया है। And if there's any price I will pay, it is the price of my own life. और जो अगर कोई दाम मैं परमेश्वर को दे सकता हूँ, वो दाम केवल मेरा जीवन ही है। Devotion to God with my life. और परमेश्वर के प्रति जो भक्ति है वो मैं दे सकता हूँ। Brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, once you give your life to Jesus Christ, जब भी आप यीशु मसीह को अपना जीवन देते हो, you can pay any price. तो आप कोई भी कीमत चुका सकते हो। Those who are struggling to pay the price जो लोग इस कीमत को चुकाने के लिए मुश्किल उठाते हैं, are those who have not truly given their lives to Christ. वो ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन को सही रीति से या सही रीति से सच्चाई से परमेश्वर को नहीं दिया है। You give your life to Christ and forget about it in his hand. और आपके जीवन को आप यीशु मसीह के हाथों में दे दो और भूल जाइए। Whatever happened to us on earth does not matter again. फिर हमारे इस धरती पर जो कुछ हमारे जीवन में होता है वो हमारे लिए मायने नहीं रखता है। What matters is that our life is now with Christ. और हमारे जीवन में जो मुख्य चीजें हैं वो यीशु मसीह है। And our lives can never be lost in Christ. और हमारा जीवन जो यीशु मसीह में है वो कभी भी गुम नहीं जाता है। When we die, we will be born into life. और जब भी हम मर जाएंगे तभी हम जीवन में हमारा जन्म होता है। Our true life. और तभी वो हम हमारा असली जीवन में प्रवेश करते हैं। Our eternal life. वो हमारे अनंत काल में हम प्रवेश करते हैं।
Here we live for 70 years, 80 years, 90 years. और यहाँ हम 70 साल, 80 साल, 90 साल जीते हैं, Eternity has no number. लेकिन अनंत काल में कोई भी संख्या नहीं है. Those who have not given their lives truly और जिन लोगों ने यीशु मसीह को अपना जीवन सच्चाई से नहीं दिया है, cannot pay the prices when the demand for price gets higher. और जब भी हमारा दाम बढ़ते जाता है, वो लोग उस दाम को कभी भी चुका नहीं पाएंगे. In Mark chapter 4, मरकुस उसका 4 अध्याय में Jesus told us a parable. यीशु मसीह एक गद्यांश को या फिर एक उदाहरण बताते हैं. In that parable, he showed us the price we'll be paying. और उस आयत में वो बताते कि वो किस प्रकार के दाम को देना चाहते हैं. The parable of the sower. और जो बीज बोने वाला है उसका दृष्टांत को हम देखते हैं. There are 4 stages and 4 people in that parable. और वहाँ 4 स्तर को हम देखते हैं और 4 प्रकार के लोगों को भी हम देख पाते हैं. So it started from the beginning and grew to the highest. और वो पहले एक छोटी रीति से वो शुरुआत होता है, फिर वो बढ़ते जाता है. Number 1, पहला है the seed that fell by the wayside. पहला जो बीज जो रास्ते के बाजू में गिर गया. And the Bible says immediately Satan came. और वचन में लिखा गया कि तुरंत ही शैतान आया. And he started speaking words. और वो कुछ बातें बोलने लगा. The first challenge you face in our Christian life और सबसे पहला जो संघर्ष हम हमारे मसीह जीवन में सामना करते हैं is words. वो है शब्द. Satan will challenge what God is telling us. और जो परमेश्वर हमसे कहते हैं उसके विरोध में या फिर उसकी चुनौती करते हुए शैतान कुछ बातों को या शब्दों को कहता है. We saw it in Adam and Eve. He challenged them with words, Genesis chapter 3, and they fell. और उत्पत्ति में भी हम देखते हैं कि आदम और हवा को भी शैतान जो है कुछ वचनों को बोलकर परमेश्वर के वचन के विरोध में कहता है. In the Matthew chapter 3, मत्ती उसका 3 अध्याय में when God said, Jesus, thou art my beloved son, in whom I am well pleased. जो पिता परमेश्वर कहते हैं यीशु मसीह के बारे में कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे प्रसन्न हूँ. Immediately Satan came in chapter 4, Matthew. और उसके बाद हम तुरंत देखते हैं कि 4 अध्याय में जो शैतान वहां प्रकट होता है. And challenge that word. और वो उस वचन का चुनौती देता है. If you are the son of God, command these stones to become bread. तो कहते हैं कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस रोटी को, इस पत्थर को रोटी बनने के लिए कहे. God just told him, you are my beloved son, in whom I am well pleased. और पिता परमेश्वर ने थोड़े समय के पहले बताया ये कहा था कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं प्रसन्न हूँ. The devil challenged it. लेकिन शैतान जो है उसका प्रतीक चुनौती फेंकता है. God told Adam and Eve, I will make you in my image and in my likeness. और परमेश्वर ने आदम और हवा को अपने समान रूप में, अपने समानता में बनाए. In Genesis chapter 3, the devil came and challenged it. और उत्पत्ति उसके 3 अध्याय में शैतान आकर एक चुनौती रखता है. Now that we are now believers in Christ Jesus, और अभी जो हम परमेश्वर के लोग हैं, विश्वासी हैं, the devil will challenge our faith शैतान जो हमारे विश्वास के खिलाफ एक चुनौती रखता है by putting thoughts in our hearts, और हमारे हृदय में वो कुछ शंकाओं को डालता है, by sending people to come and talk to us, और कुछ लोगों को भेजता है जो हमसे आके बातें करता है, to discourage us from the faith. जो हमको विश्वास से निरुत्साहित कर देता है. That is a parable by the wayside. The seed that fell by the wayside. The Bible says Satan came and challenged that seed. ये उस बीज के समान है जो मार्ग के किनारे में पड़ा था और शैतान तुरंत आकर उसको उठा लेता है. So the devil will continue to challenge our faith. तो शैतान हमेशा हमारे विश्वास के प्रति विरोध में if that one did not succeed, he will go to number 2. और हम जो यदि इसको समझे हैं तो हम अगले बिंदु की ओर जाएंगे. The parable of the sower और उसी दृष्टांत को हम देखते हैं. are different stages of our Christian life. वो हमारे मसीह जीवन के बारे में एक दर्शाता है. The things we need to pass through for us to bear fruit.
और जो अलग अलग स्तर को हमको सामना करना पड़ता है ताकि हम विश्वास को जान सके। So if Satan did not succeed by speaking words to us or sending people to talk to us, यदि शैतान जो है ऐसी कुछ बातों को बताता है या फिर लोगों को हमारे पास भेजकर निरुत्साहित करता है, he will go to number 2, affliction and persecution. और फिर हम दूसरे बिंदु को देखते हैं, वो है संघर्ष और सतावट। This one is higher than the first one. और जो पहला बातें है उससे भी बढ़कर बातें है ये संघर्ष। He tried to bring suffering our way. यहाँ शैतान जो है लोगों को नहीं लेकिन संकट को, क्लेश को देता है, So that we can be offended and say that our life was better before than now. ताकि हम जो है निरुत्साहित हो जाए और कहे कि मेरा जीवन पहले अच्छा था लेकिन अभी अच्छा नहीं है। But God will give us the strength to endure. लेकिन परमेश्वर जो है हमको इसका सामना करने के लिए सामर्थ्य देते हैं। The Bible said in that parable, और इस दृष्टांत में वचन में लिखा गया है, the seed that fell on the rocky ground. और ये वो बीज है जो पथरीली भूमि पर गिर गया। When persecution and affliction came, they were offended and they left Christ. और जब ये संघर्ष और क्लेश आया तभी वो जो है निरुत्साहित है, फिर निराश होकर वो चले गए। So if the devil talk to us or send people to talk to us and did not succeed, he will bring affliction and persecution. तो यदि पहला शैतान हमको निरुत्साहित करने वाले बातें या फिर लोगों के द्वारा हमको निरुत्साहित करते हैं और हम निरुत्साहित नहीं होते हैं तो हमको चुनौती या फिर क्लेश देता है। This number 2 is higher than number 1. और ये जो स्तर है वो पहले स्तर से भी बढ़कर है। Then if he does not succeed with affliction, persecution and suffering, he will go to number 3. यदि हम इस सतावट से या क्लेश से भी हम मानते नहीं है तो शैतान अगले स्तर के और जाता है। Number 3 is more dangerous than number 1 and number 2. और तीसरा जो स्तर है वो पहले और दूसरे स्तर से भी बहुत ही ज्यादा भयानक है। Number 3 is our own flesh. और तीसरा जो स्तर है वो हमारा खुद का जो शरीर है, जो हमारी देह है। The lust of our eyes, the lust of our flesh, and the pride of life. और आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का जो घमंड है। They are in 1 John chapter 2 verse 15 and 16. और पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय उसके और 15वें आयत में हम देखते हैं, Satan will occupy us with the cares of this world. शैतान हमको इस संसार की वस्तुओं से या फिर बातों से हमको जो है हमको बिजी रखता है। The desire for wealth. और संसार में जो हमको धन की अभिलाषा होता है। Money is not bad. और धन जो है बुरा नहीं है। But excessive desire for money. लेकिन धन के लिए जो लोभ है, and we compromise the truth. और उसके कारण, उस लोभ के कारण हम जो सच्चाई को बताते नहीं है, is bad. और वो बुरी बात है। And he said the desire for other things. और जो हर एक बातों का जो इच्छा है, जो अभिलाषा हम रखते हैं, entering into our heart. वो हमारे हृदय में प्रवेश करता है। It makes the word of God unfruitful. और ये बातें जो है परमेश्वर के वचन को निष्फल कर देता है। Now notice the pattern. और इस पैटर्न को हमको समझना है। Number 1, the seed that fell by the wayside. जो मार्ग के किनारे में जो बीज गिरा था वो है पहला। That seed did not grow at all. और जो बीज मार्ग के किनारे में गिरा वो कभी भी नहीं बढ़ा। The seed that fell on the stony ground grew small but died. और जो बीज जो पथरीले भूमि में गिरा था वो थोड़ा उगा लेकिन फिर वो मर गया। Persecution and suffering made it die. और जो सतावट और क्लेश है वो बातें उसको मार डाला। The one that is most dangerous, the one that fell among thorns. और जो सबसे भयानक था वो है जो खाटों के बीच में गिर गया था। That one grew. और वो जो है बढ़ गया था। But it did not bear fruit. लेकिन वो कोई भी फल को नहीं दिया। Many are in that category today. और कई लोग इसी विभाग में आज भी गिरते हैं। They are in church but they are not bearing fruit. और वो बढ़ते हैं लेकिन वो निष्फल रहते हैं। Or they are not bearing fruit enough. और या फिर वो जो है कोई भी फल को वो अपने जीवन के द्वारा नहीं देते हैं। God hates spiritual barrenness as much as he hates sin.
और यदि हम फल को नहीं देते हैं तो परमेश्वर परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। वो पाप से जिस प्रकार से घृणा करते हैं उसी प्रकार से ही वो निष्फलता से भी घृणा करते हैं। The fig tree that did not bear fruit, Jesus cursed it. और जो अंजीर का पेड़ जो फिग ट्री है जिसमें कोई फल नहीं था, उसको परमेश्वर ने श्रापित कर दिया। A Christian that is not bearing fruit is cursed. और जो मसीही जिसके जीवन में फल नहीं है उसके ऊपर भी एक शाप है। Remember the parable of the talent. The person that received 1 talent and he hid it inside the ground and did not bear fruit. और हम जो दिनार का उस दृष्टांत को जानना है, जिस व्यक्ति को 1 दिनार मिला था, 1 सिक्का मिला था, उन्होंने उस 1 सिक्के को दबा के छुपा के रखा और कोई भी फल उसके द्वारा प्राप्त नहीं हुआ। God said they should cast him out of his presence into outer darkness where there will be wailing and gnashing of teeth. और परमेश्वर कहते हैं कि उस दास को मेरे सामने से हटा दे और उस अंधकार में डाल दे जहाँ कष्ट और क्लेश है। In John chapter 15, Jesus said, यूहन्ना उसके 15वां आयत में यीशु मसीह कहते हैं, I have called you so that and ordained you so that you bear fruit. मैंने तुझे इसीलिए बुलाया है ताकि तू फलवंत हो सके। Fruit here is our Christian service. और फलवंत होना जो हमारा मसीही सेवकाई है To God and our own brothers and sisters. और वो सेवकाई परमेश्वर के प्रति और हमारे भाइयों और बहनों के प्रति भी है। The first blessing that God gave man in Genesis is to be fruitful and multiply. और सबसे पहला आशीष जो परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन बगीचे में दिया था वो यही है कि वो फलवंत हो सके। Before you can be unfruitful and barren in our faith, और आप जब आप निष्फल रहते हैं या फिर आप विश्वास में निष्फल हो रहते हैं, those who are barren in our faith, they have denied the faith. और जो निष्फल रहते हैं वो लोग, Jesus cursed the fig tree because I hate barrenness. The last one, the good soil. और चौथा जो हम स्थान को देखते हैं वो एक अच्छी भूमि। The Bible says these are those that hear the word of God, they receive it in a good and honest heart. और वे लोग वचन को एक अच्छे हृदय से और एक सच्चे हृदय से उसको ग्रहण करते हैं। They will keep the word, वो वचन को हृदय में रखते हैं and bring forth fruit with patience. और वो लोग धीरज के साथ फल को उत्पन्न करते हैं। So this is where I will end my conversation with us, brethren. और यही पर मैं मेरा जो बातें हैं समाप्त करना चाहता हूँ। While are believers not fruitful? हम विश्वासी लोग फलवंत क्यों नहीं है? They are in the faith, they are in church, in fellowship. क्या मैं The Bible says the devil will be pouring things into their heart. और वचन में दिखता है कि शैतान जो है उनके हृदय में शंकाओं को भरता है। They care of this world. और संसार की बातों के बारे में वो व्यस्त हो जाते हैं। The deceitfulness of riches. और वो संसार की जो भ्रम में वो फंस जाते हैं। And desire for many things. और बहुत सारे अभिलाषा में वो फंस जाते हैं। If we don't overcome these things, we cannot be fruitful. यदि हम इस बातों के ऊपर विजय प्राप्त नहीं करते तब तक हम जो फलवंत नहीं हो सकते हैं। The way God wants us to be fruitful. और जैसा हम परमेश्वर चाहते हैं उस प्रकार से हम फलवंत नहीं हो पाएंगे। That is why I started by saying that this world is empty. इसलिए मैंने शुरुआती में कहा था कि ये संसार जो है वो शून्य है। The greatest thing that stops believers, brothers and sisters, from bearing fruit is this world. हम जो सबसे बड़ा चीजें कर सकते हैं संसार में वो ये है कि हम संसार में फल को उत्पन्न करें। The care of this world. और हम इस संसार की ध्यान में संसार की बातों में हम भटके ना। The law on due love for money. और हमको धन के प्रति लोभ नहीं रखना है। And desire for many things. और हम बहुत सारी चीजों के प्रति हमको जो है अभिलाषा नहीं रखना है। Brothers and sisters, मेरे भाइयों और बहनों, we are preparing for our life. हम एक जीवन के लिए तैयारी कर रहे हैं। Let us give everything. हम जो सारे वस्तु को दे दे and put it in God. वो यीशु मसीह के हाथों में दे देते हैं। This whole world is a lie. इस पूरा संसार जो एक झूठ है। God is the truth. और केवल यीशु मसीह वो सच्चाई है।
eternity is the truth. अनंत काल जो है एक सच्चाई है। Today, you and I, we are talking on earth. और हम जो है इस धरती के बारे में आज बातें कर रहे हैं। In 50 years' time, अब 50 साल के बाद most of us will not be here, we'll be in another place. कई लोग, हम में से कई लोग यहाँ नहीं होंगे, हम कहीं और स्थान में रहेंगे। That place will be forever. और वो स्थान जो अनंत काल का स्थान होगा। And that is why we are in the womb today. और इसीलिए आज हम उस कोख में या फिर उस गर्भ में हैं। When we die, we'll be born. और जब हम मरेंगे तभी हमारा जन्म होगा। Let us labor to be born well, तो हमको परिश्रम करना है ताकि हम अच्छे से जन्म ले सके, so that we can start a good life in heaven ताकि हम स्वर्ग में एक अच्छे जीवन को जी सके with the angels and the saints of God that have gone before us. और उस स्वर्ग में स्वर्गदूतों के साथ और परमेश्वर के जो दास और दासी हमारे So पहले this is गए my- हैं उनके साथ हम वास करें। This is my message, brothers and sisters. और यही मेरे संदेश है आप लोगों के लिए। Our faith, हमारा विश्वास, our hope हमारा आशा, is the main life, वो ही हमारे मुख्य जीवन के लिए होना है। is the human life. वो इस संसार के जीवन, मनुष्य के जीवन में है। That faith is Jesus Christ. और वो विश्वास जो है वो यीशु मसीह है। That hope is Jesus Christ. और वो आशा यीशु मसीह है। The more we love him, और जितना ज्यादा हम उनसे प्रेम करते हैं our Christian life becomes sweet. उतना ही मधुर हमारा विश्वासी जीवन बनता है। Affliction and persecution become sweet. और तभी हमारे लिए सतावट और क्लेश भी जो है अच्छा मधुर बन जाता है। In all things we have joy, और हर एक चीजों में हमको आनंद प्राप्त होता है, because when we are in pain, क्योंकि जब हम दर्द में होते हैं we see Jesus in our heart, तभी हम हृदय में यीशु मसीह को ढूंढते हैं smiling over us from heaven. और हम जो है परमेश्वर जो है हमको वो सामर्थ्य देता है And our pain will be turned to joy. और हमारा जो दर्द है वो आनंद में बदल जाता है। When the world brings its material goods और जब भी हमारे संसार में हमको भौतिक वस्तु मिलता है and pressure of family and friends, और पारिवारिक जो दबाव या फिर मित्रों के प्रति और से जो दबाव होता है, we will remember Jesus. तभी हम यीशु मसीह को ढूंढते हैं या यीशु मसीह को याद रखते हैं। We will remember Jesus हम यीशु मसीह को स्मरण करते हैं and stand strong. और हम दृढ़ खड़े हो जाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, brethren, for this opportunity. इस I'll say a अवसर word of के लिए prayer now and I will leave. और इस अवसर के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और हम प्रार्थना करके मैं भी जाऊंगा। Our eternal Father, we thank you. हमारा अनंत काल का परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। You have called us to yourself. और आज आपने हमको आपके प्रति और बुलाया है। Our reward, our inheritance is you. और हमारा हम जो आपके ही है और हम आपके ही वारिस है। What you will give us is yourself. और हम जो आपको देते हैं वो हम अपने आप को ही दे रहे हैं। And once we have you, we have everything. और आप भी हमको आप भी अपने आप को हमारे लिए दिया है When और we have हमको you, सब कुछ we है। have everything. और जब हमारे पास आप है तो हमारे पास सब कुछ है। When we have you, we have everything. और जब हमको आप प्राप्त हो चुके हैं तो हमारे Thank पास you, सब our कुछ righteous है। Father. और हम धन्यवाद देते हैं। Thank you because you have given us yourself. और धन्यवाद देते हैं Thank you कि for our आपने brothers in India. और हमारे Thank you भाइयों के because they लिए are धन्यवाद blessed. देते हैं। उनके Thank लिए you because धन्यवाद you देते हैं। continue to bless them and आप strengthen उनको them. आशीष कीजिए In Jesus' name. यीशु मसीह के Amen. नाम से Thank you for the fellowship. Once again, I'm grateful. Thank you. और इस संगति के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं और मैं बहुत ज्यादा आनंदित हूँ। Thank you, Pastor David. It was such a convicting and such a powerful message that we heard today. पास्टर डेविड हम धन्यवाद देना चाहते हैं और बहुत ही सामर्थ्य रीति से परमेश्वर ने हमसे बातें किया है। The true word of God, the test of a true word is that gets us closer to Jesus. और सच I'm में done. जो Thank you. वचन होता है वो वचन हमको परमेश्वर की और भी निकट लेके जाता है। And so we are so grateful that you have spoken to us the word of God, which brings us the truth.
और हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने आपके द्वारा जो सच्चाई हमारे पास भेजा है। Higher calling requires higher sacrifice and higher price. और बड़े बुलाहट के लिए बड़ा ही बलिदान और बड़ा ही कष्ट को हमको झेलना पड़ता है। Our life is hidden in Christ, praise God. और हमारा जीवन जो वो मसीह यीशु में ही छिपा है। And so we are so grateful for this word today. Once again, thank you, Pastor David, and all the people of God who came from Nigeria to encourage us and support us. We are blessed by your fellowship. परमेश्वर के दास पास्टर डेविड को हम धन्यवाद देना चाहते हैं और नाइजीरिया से जो भी हमारे बीच में आज जुड़े हैं उन सभी को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। I'm going to hand over this meeting back to Pastor Deepak to please kindly pray for Pastor David and his ministry and the people of God who have joined us, and also that the word that God spoke to us might remain in our hearts. और पास्टर दीपक अभी जो है परमेश्वर के दास के लिए और उनके नाइजीरिया के लोगों और सेवकाई के लिए प्रार्थना करेंगे और ये भी प्रार्थना करेंगे कि जो वचन आज हमारे बीच में आया है वो वचन हमारे हृदय में वास करे। I also want to thank Sister Nissi for that beautiful translation. God richly bless you. और सिस्टर निसी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ट्रांसलेशन के लिए। परमेश्वर उनको भी आशीष करे। Back to you, Pastor Deepak. Thank you. Praise the Lord. Hallelujah. आइए हम प्रार्थना के साथ मीटिंग को विराम करेंगे। Amen. Let's all come together. Amen. Hallelujah. With one spirit. Amen. As we are closing this. Amen. Hallelujah. Session with the word of prayer. Amen. Heavenly Father, we Amen. Come into your presence, Lord. Thank you for your mighty servants, Lord Father. Thank you for bringing them, Lord Father, all the way from Nigeria, Lord Father, as we have been listening. Amen. Hallelujah. The word of truth, Lord Father, that amen, life is, amen, amazingly hidden in Christ. And amen. Hallelujah. It's extraordinarily meaningful, Lord Father. Hallelujah. Amen. Hallelujah. हमारे प्यारा खुदावंद, आमीन, हम तेरे लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। आमीन, अपने दासों को आपने लाया है। आमीन, और आमीन जैसे हम लोग सुना है प्रभु जी। आमीन, हालेलुया, हमारे आमीन जीवन के बड़े मकसद के लिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। हमारे हर एक सेवकों को प्रभु जी, आमीन, अपनी सेवकाई में एक नया कदम में आप ले जाइए प्रभु जी। जिंदगी के छोटे छोटे चीजों में अटका हुए रहने के लिए नहीं है प्रभु जी। आमीन, आपके ऊपर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ने के लिए दिवालबा शमदनारबलखना हमें दाऊद तो हमें छोटे दे प्रभु जी, तब भी हमें जैसे प्रभु के बुलाहट उसके जिंदगी में आया, आमीन, जैसे उसने बड़े बड़े कदम को आगे बढ़ाया, हमारा जिंदगी आमीन एक बदलावट में आप लाने के लिए हम दुआ करते प्रभु जी। आमीन, हालेलुया। हमारे आमीन संस्था के फाउंडर लीडर लोगों के लिए हम दुआ करते। पास्टर जी को आपने लाया, अपने अभिषिक्त को आमीन आप इस्तेमाल कर हम दुआ करते प्रभु जी। आमीन, अंकल और आंटी आमीन हालेलुया जो अपने आमीन हालेलुया यहाँ है प्रभु जी, आमीन उन लोगों को भी आप आशीषित कर हम दुआ करते प्रभु जी। Praise the Lord. Hallelujah. Once again, I pray for all your mighty servants, Lord Father. Amen. Who have come from, amen, and Nigeria, especially for Pastor David, Lord Father. We pray, hallelujah, in these days, Lord Father, you will, amen, hallelujah, use him, amen, powerfully, Lord Father. Amen, in all respects, Lord Father. हालेलुया, आमीन। अभी आमीन हालेलुया जैसे हमें यहाँ मीटिंग को हम हालेलुया समाप्त करते प्रभु जी, हम कल के आराधना के लिए हम दुआ करते प्रभु जी। जहाँ जहाँ हमारे आमीन अलग अलग जगहों में आमीन आराधना होते प्रभु जी, पवित्र आत्मा के सामर्थ उतरने पाए। आमीन, हमारे आमीन हालेलुया इलाकाओं में, हमारे देश में प्रभु जी कई प्रकार की समस्या इधर उधर चलते हैं प्रभु जी, हमें तब भी प्रभु जी हमें बड़े हियाव बनते हुए प्रभु जी आगे बढ़ने के लिए हमको इस्तेमाल कर दुआ करते। धन्यवाद प्रभु जी, आपके हाथ में हम सभी लोगों को सौंप देते प्रभु जी। आपके आप में छिपा हुआ एक जिंदगी फिर से हम मांगते हैं प्रभु, हमारी जिंदगी बदल जाए, हमारे सोच बदल जाए, हमारे आत्मा के अनुभव बदल जाए, हम दुआ करते हैं। प्रार्थना आप सुना है, धन्यवाद। यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आइए मेरे प्रियो, हम आशीष वचन ग्रहण करते हुए ये मीटिंग को हम विराम करेंगे। हमारे पिता परमेश्वर के प्रेम, पुत्र यीशु मसीह के अनुग्रह और पवित्र आत्मा के सहभागिता हम सबों के साथ, विशेष करके आज आमीन हालेलुया सेवा करने के लिए आए हुए तमाम प्रभु के दासों के साथ, आज कल और आमीन दुनिया के आमीन हालेलुया अंत तक आमीन हमेशा
होती रहे। आमीन। हमारे पवित्र आत्मा को उठाते हुए 3 बार हमें परमेश्वर को जय जयकार करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सभी लोगों को आशीष करे। We just want to once again extend our thanks, amen, to the pastors who joined for, amen, hallelujah, from Nigeria, especially, amen, to Pastor Reggie Thomas, amen, hallelujah, amen, hallelujah, uncle, amen, Pastor P.A. Thomas, auntie, amen, hallelujah, सभी लोग जो ज्वाइन किया है, सभी लोगों को विशेष धन्यवाद। हालेलुया। जय मसीह, जय मसीह। जय मसीह की, जय मसीह की। सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष करे। थैंक यू एवरीवन। सबों को जय मसीह से, सबों को जय मसीह। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मालिक जी, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मालिक जी, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। Thank you again, Pastor David and the family and all the members who came from there. We are so blessed to have you. Please come again and minister the word to us. We are blessed. Thank you so much, Pastor जी। ठीक है, गुड नाइट। आमीन। शुभ रात्रि सभी लोगों को। Praise the Lord। God bless you all. Praise the Lord. Praise the Lord.